Yes, everyone. Right. Completed with the whole process of the transcription, right, in detail. Right, transcription in prokaryotes, transcription in eukaryotes. Good afternoon, Rajul. Very good afternoon, dear. Shagul, that's good. Yes, Zoya, great. Right, तो फटाफट से कोई right, and then we will start translation आज शुरू करेंगे हम. वाला पूरा प्रोसेस आज करेंगे कंप्लीट. ट्रांसलेशन तो कंप्लीट नहीं होगा खैर, लेकिन हाँ जेनेटिक कोड वाला पॉइंट कर लेंगे आज कंप्लीट. राइट, ओके गाइस. Right, so we talk about transcription. Right, how many RNA polymerases are there in the case of the eukaryotes? How many RNA polymerases are there in the eukaryotes? फटाफट से आंसर मुझे मिलता चला जाए. Right, 3, very good. Right, so the 3 RNA polymerases in the case of the eukaryotes we are having, that is RNA pol 1, RNA pol 2, RNA pol 3. Right, for which tRNA can be synthesized? For which tRNA can be synthesized? tRNA किससे synthesize कर सकते हैं? Right, using the unit which is called as the RNA pol. Unit 3, very good. Right, so हमने कहा RNA pol 3 is going to be there for which you can synthesize the tRNA. Right, rRNA. Are the all units of rRNA in the eukaryote synthesized? All unit of rRNA in the eukaryote. Your voice is breaking. Just audio video being fine. Okay, are you getting the proper voice, everyone in the class? No? Okay. Just give me a sec. It's fine now, Zoya? Fine. Okay. No, it's not fine yet. Just wait, just wait. Okay, guys, is it being fine now? Yes. Kushagra, Zoya, Raju, right? Any specific point till here? Koi bhi point, right? Koi bhi problem, audio, video? Is it being fine? Right, everyone in the class? Yes, good. Now clear? That's good. Okay, guys, fine, great. Right, okay, guys. So we were talking about the transcription हमने complete किया था, and transcription में we stated about right the whole process हमने यहाँ पर define किया था. Right, transcription में now tell me guys. Right, transcription जब हम complete पूरा कर रहे थे, तो there is a step which is representing the dominance of RNA world. Which step is representing the dominance of RNA world? राइट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस. डोमिनेंस के लिए आरएनए वर्ल्ड की डोमिनेंस को इंडिकेट करने के लिए राइट कौन सा प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? राइट, स्प्लाइसिंग. वेरी गुड, स्प्लाइसिंग. ओके, व्हाइल डूइंग द कैपिंग, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैप व्हिच इज एडेड टू द 5' एंड? बाय डूइंग द कैपिंग, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैप एडेड टू द 5' एंड? राइट, हमने कौन सा कैप ऐड किया है 5' एंड पे? राइट, सो वी हैव एडेड द यस कैप. हमने कौन सा उसमें ऐड किया? 7 मिथाइल गुआनासिन कैप. राइट, वेरी गुड जैस्मिन. वी हैव 7 मिथाइल गुआनासिन कैप हमने ऐड किया है. राइट, सो दैट द कैपिंग कैन बी डन. राइट, ओके, द कैप इज बीइंग एडेड बाय using the phosphodiester linkage, phosphoanhydride linkage. Right, is it being added due to the phosphodiester linkage or phosphoanhydride linkage? हमने कौन से linkage को यहाँ पे use? Right, we have used the right phosphoanhydride. Very good, phosphoanhydride linkage in order to prevent any particular, कोई भी हम यहाँ पर frame shape mutation ना होने दे, उसको prevent करने के लिए we have just gone for the phosphoanhydride linkage. Absolutely correct. Right, next afterward इसी के बाद हमने right next define किया right कि during the process of the tailing, right what is the major function of the tailing? Tailing का main function क्या है?
टेलिंग प्रोसेस की जाती है, राइट. व्हाई टेलिंग हैज बीन प्रैक्टिस दैट यू ऐड द पॉलीएडेनाइलेशन आप करते हो, पॉली ए टेल को ऐड करते हो 3' एंड पे, राइट. सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट बाय व्हिच यू कैन डू इट, जिसके थ्रू आप इसको परफॉर्म करते हो पॉलीएडेनाइलेशन को. Yes, exactly. Reactivity decreases, right, Rajul? We will have to decrease the chemical reactivity and increase the stability, right? That's why we will say it is being defined as, right? कि आप यहाँ पर टेलिंग को कराते हो. बिल्कुल ठीक है. अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे the process which is being defined as the complete next one that is called as a genetic code translation. तो पहले तीनों टाइप RNA के कंप्लीट करेंगे, राइट. rRNA, tRNA एंड mRNA. उसके बाद में ट्रांसलेशन का पहला स्टेप आज आपको कंप्लीट कराऊंगी, राइट. तो एक एक करके ध्यान से कंसेप्ट समझना, राइट. सो लेट मी शेयर दिस स्क्रीन विद यू. टाइम हमने जेनेटिक कोड का एक प्रॉपर्टी पढ़ा था दैट जेनेटिक कोड इज अ डबलेट, ट्रिपलेट और सिंगलेट. क्या होना चाहिए ताकि हम टोटल 20 अमीनो एसिड्स को कोड इन कर सकें, राइट. तो जेनेटिक कोड मस्ट बी, राइट, ट्रिपलेट. वेरी गुड. जेनेटिक कोड मस्ट बी ट्रिपलेट सो एज टू कम अप विद द रीजन कि हम यहाँ पर स्टेट कर सके कि इट विल फॉलो दिस कंडीशन, राइट. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ओवर हियर. ठीक है, राइट. ओके. So now moving to the genetic code. तो हमने कहा genetic code का basic. Yes, Rahul. Right. Any doubt, बच्चा? Right. So write in the chat. Fine. Okay, guys. Right. Now moving to the topic over here. तो हमने कहा genetic code का जो हमने nature define किया था. Right. We say genetic code is being the one, right, which represent the point, right, that is, right, it should be how we are reading the mRNA का reading frame हमारे पास क्या होना चाहिए, right. So what should be the reading frame of the mRNA? हमने कहा the open reading frame of mRNA, right. So इसी open reading frame को हमने define किया that we will read it as a triplet. हम इसे triplet की तरह read करते हैं, राइट. तो ट्रिपलेट की तरह रीड किया, लाइक इफ आई हैव द 5' सीक्वेंस, तो मैंने इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया, राइट, इस तरीके से. तो आई हैव सेड दिस इज द ट्रिपलेट, राइट. इसे मैंने ट्रिपलेट कहा, एंड ईच ट्रिपलेट इज कॉल्ड एज कोडॉन्स. इसको हमने कोडॉन्स का नाम दिया, राइट. एंड वी नो वेरी वेल कितने ट्रिपलेट्स पॉसिबल हैं, 64 ट्रिपलेट्स, क्योंकि हमने कहा था ना हमारे पास 4⁻³ is equal to 64 triplets. So we are having these 64 codons. हमारे पास जो codons present है वो कितने हैं बच्चे, हमारे पास 60 have the 64 codons which are going to be present, right. तो हमने यहाँ पर ये डिफाइन किया, बिल्कुल ठीक. अब आ जाते हैं हम आगे. इसमें जेनेटिक कोड को हमने बेटा ये मैथमेटिकली तो डिफाइन कर लिया कि ठीक है हमारे पास 4⁻³ है, तो हमने 64 ट्रिपलेट्स की कैटेगरी डिफाइन कर दी. लेकिन हम अब ये कैसे कहेंगे, राइट, कि जो ये जेनेटिक कोड हमने यहाँ पर लिया है इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमने कैसे किया, राइट. तो हाउ आर वी गोइंग टू डू द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर दिस, कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किस तरीके से करते हैं, राइट. सो लेट्स स्टेट अबाउट दिस वन, राइट, कि जेनेटिक कोड हम इसमें एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस हमने इसका कैसे किया, राइट. तो वी स्टेट अबाउट दी experimental analysis of genetic code, right. So genetic code का experimental analysis क्या है, let's talk about this. तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट पे आऊंगी, बहुत ध्यान से इसके बेस पे न्यूमेरिक क्वेश्चन भी करना है हमें आज, राइट. तो वी से इज द वेरी फर्स्ट, हमने पहला एक्सपेरिमेंट लिया which is called as the homopolymer experiment. Okay everyone, now homopolymer experiment. Homopolymer experiment का मतलब we have done for the in vitro synthesis of mRNA. We have done the in vitro synthesis of mRNA using single monomer. आपने एक ही मोनोमर को यूज करके आपने mRNA का
इन विट्रो सिंथेसिस किया। इन विट्रो का मतलब बच्चे हमने लैब में सिंथेसाइज कराया है, राइट। तो हम लैब में सिंथेसाइज कराएंगे इसको, राइट। निरनबर्ग एंड खुराना का एक्सपेरिमेंट है ये, राइट। एक एक करके आएंगे इस पे। सबसे पहले तो वी हैव टेकन अ टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने लेट सपोज यहाँ पर RUTPs को डाला, राइट, क्योंकि मुझे यूरेसिल का बनाना है, तो आई एडेड द RUTPs। उसी के साथ साथ मैंने एक एंजाइम डाला विच इज कॉल्ड सेवरो-ओका एंजाइम, and this Severo-Oka enzyme is the one which is in vitro polymerase enzyme। जो ये in vitro polymerase enzyme है, right, जो basically catalyze करेगा the polymerization of RUTPs। RUTPs को polymerize कराएगा in template independent और एक mRNA का स्ट्रेच यहाँ पर हमारे लिए सिंथेसाइज कराएगा। G2+ भी डाला ताकि ये इसके कोफैक्टर की तरह काम करता है इस एंजाइम के, ताकि वर्क कर सके। जब आपने ओवरऑल प्रोसेसिंग कराई तो यू गेट एन mRNA, लेट्स सपोज दिस, ये मेरे पास बेटा mRNA स्ट्रेच आ गया, राइट। तो ये मैंने mRNA यहाँ पर फॉर्म कर दिया, राइट। अब एक एक करके बहुत ध्यान से इसका पूरा एक्सपेरिमेंट एनालिसिस समझना। हमने कहा ये mRNA हमने बनाया, mRNA से वी गो फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। हमने ट्रांसलेशन करा है, वो भी इन विट्रो ही करा। अब मेरे पास आउटकम कैसे आते हैं, राइट। व्हाट शुड बी द आउटकम आई एम हैविंग? लेट अस सपोज फर्स्ट कंडीशन दैट कोडॉन इज अ सिंगलेट। पहली कंडीशन लेके चलते हैं। पहले हमने एक हाइपोथेटिकल लिया, फिर हमें एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट पता चलेगा। अगर मैं सिंगलेट लेके चलती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो ट्रांसलेशन के बाद आई हैव अ सिंथेसिस ऑफ होमोपॉलीपेप्टाइड। एक मुझे होमोपॉलीपेप्टाइड मिलेगा, राइट। सो वी हैव होमोपॉलीपेप्टाइड ऑफ 9 अमीनो एसिड्स। 9 अमीनो एसिड का होमोपॉलीपेप्टाइड मिल जाएगा, राइट। अगर मैंने कहा मेरे पास कोडॉन कैसा है, सिंगलेट। सेकंड मैंने कहा कि लेट अस सपोज कोडॉन इज वर्किंग डबलेट। अगर मैं कोडॉन को डबलेट लेके चलती हूँ तो बेटा ये दो मैंने बनाए इस तरीके से, एक एक सेट मैंने यहाँ बना दिया। तो मेरे पास क्या मिलेगा यहाँ पर? अगेन आई एम हैविंग होमोपॉलीपेप्टाइड ऑफ 4 अमीनो एसिड। 4 अमीनो एसिड मिलेगा। लेकिन अब मैंने थर्ड कंडीशन ली कि कोडॉन इज वर्किंग एज अ ट्रिपलेट। अगर मैं कहती हूँ कोडॉन ट्रिपलेट की तरह काम करता है, राइट, तो लेट अस सपोज इफ आई से कोडॉन वर्क एज अ ट्रिपलेट, तो मेक इट एज अ ट्रिपलेट, दिस वन एंड दिस वन। अब मुझे क्या मिलेगा? आई गेट पॉलीपेप्टाइड ऑफ हाउ मेनी अमीनो एसिड्स? 3 अमीनो एसिड की मुझे एक होमोपॉलीपेप्टाइड मिली, राइट। अब मैंने जब एक्सपेरिमेंटल कराया, व्हेन आई गो फॉर इन विट्रो ट्रांसलेशन, मुझे इन विट्रो ट्रांसलेशन पे आई गेट होमो ट्राईपेप्टाइड। मुझे होमो ट्राईपेप्टाइड ही मिली, राइट। इस प्रिडिक्शन कोडॉन इज गोइंग टू बी अ ट्रिपलेट, हेंस प्रूफ हो गया। एवरीवन अंडरस्टूड ना, राइट। सो वी सेज hence it is being proved, right, that genetic code is going to be a triplet. Genetic code is going to be a triplet. Completed यहाँ तक सबको सब पॉइंट, राइट, कि हमने कैसे प्रूव किया बच्चे होमोपॉलीमर एक्सपेरिमेंट, राइट। सो बी से आपने सेम एक ही मोनोमर लिया, उसको ज्वाइनिंग करने, राइट। अब हमने कहा सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या किया, राइट। द सेकंड एक्सपेरिमेंट फिर होमोपॉलीमर लेके चल रहे, लेट्स टेक अ कंडीशन कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सेम होने की वजह से ऐसा मुझे मिला है, राइट। लेट्स टेक अ कंडीशन, वी विल टेक अ कोपॉलीमर, राइट। तो हम क्या कराते हैं, लेट्स गो फॉर दी कोपॉलीमर एक्सपेरिमेंट। अब कोपॉलीमर का मीनिंग समझाओ मुझे, कितने आप मिनिमम लेके चलोगे? मिनिमम न्यूक्लियोटाइड्स आप कितने लेके चलोगे? 1 टाइप और 2 टाइप और 3 टाइप और 4 टाइप, मिनिमम आपको कितने लेके चलने पड़ेंगे ताकि आप कोपॉलीमर की सिंथेसिस कर सको, राइट। So that you can go for the copolymer synthesis, right? अगर एक लेके चल, at least 2, very good, at least 2 types आप लेके चलोगे, क्योंकि जब होमोपॉलीमर बनाना था तो मैंने सिंगल लिया था,
लेकिन जब मुझे कोपॉली आना है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे क्या लेने पड़ेंगे, एटलीस्ट मुझे यहाँ पर 2 टाइप्स लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, तो अब हमने कहा हम यहाँ पर 2 टाइप्स लेके चलते हैं, लेट्स करेगा। अब अगर मैंने कोपॉलीमर लिया, लेट्स सपोज मैंने सीयू लिया, राइट, सीयू इज बीइंग द वन जिसके थ्रू मैंने इन विट्रो एमआरएनए बनाया, तो आई हैव फॉर्म द इन विट्रो एमआरएनए टेम्पलेट। मैंने कोई डीएनए नहीं लिया बेटा, इन विट्रो एमआरएनए बनाया, तो 5 प्राइम से मैंने ये सीक्वेंस ले लिया, राइट, दिस इज द वन। अब मुझे फटाफट से बता दो, अगर मैं इसमें प्रूफ करती हूँ एंड कोडॉन इज अ ट्रिपलेट, देन व्हाट शुड बी द आंसर? पेप्टाइड शुड बी ऑफ, पेप्टाइड कितने अमीनो एसिड्स की बननी चाहिए, राइट, कितने अमीनो एसिड की पेप्टाइड हमारे पास फॉर्म होनी चाहिए, राइट। अगर हम इसमें कोडॉन को ट्रिपलेट लेके चलते हैं, तो अगर मैं ट्रिपलेट लूं तो कैसे लूंगी? CUC, देन UCU, देन CUC, देन UCU। इज इट अ होमोपॉलीपेप्टाइड और अ हेट्रोपॉलीपेप्टाइड? ये होमोपॉलीपेप्टाइड होगी या हेट्रोपॉलीपेप्टाइड होगी? It's going to be a chain called as the heteropolypeptide, right now? Very good. So we will name it as the now heteropolypeptide of 4 amino acids. 4 अमीनो एसिड की बनी है, जहां पर मैं ऐसे बना सकती हूँ A1, A2, A1, वापस A2, ये बन जाएगा मेरे पास। एवरीवन कंप्लीटेड यहाँ तक? तो मेरे पास सेकेंड एक्सपेरिमेंट प्रूव हो गया। इसका मतलब मैंने क्या नेचर दे दिया? फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास आ गई, दैट जेनेटिक कोड इज गोइंग टू बी अ ट्रिपलेट कॉल्ड कोडॉन। इस ट्रिपलेट को मैंने नाम किया टू कोड फॉर द अमीनो एसिड के लिए कोड करें, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये चीज प्रूव हो गई। अंडरस्टूड एवरीवन, राइट। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस और इसका नॉर्मल पूरा का पूरा ओवरव्यू क्लियर हुआ। अब हम आते हैं इसके ऊपर, जो हमने जेनेटिक कोड बनाया बेटा, इसको अब मैं कैसे 64 को डिजाइन करूं, राइट। तो हाउ आई एम गोइंग टू डिजाइन द 64? नाउ सी एवरीवन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिस्कवरी दोनों के नाम याद रखना, निरनबर्ग एंड मैथ्यू, एंड अनदर वन हरगोबिंद खुराना, जिन्होंने कोपॉलीमर के थ्रू इसको कंप्लीट प्रूफ कर दिया था, राइट। तो निरनबर्ग एंड मैथ्यू ने पॉलीयू एमआरएनए बनाया, राइट, और डिकोड किया कि फिनाइल एलानिन, अभी आपको बताऊंगी ट्रिपल यू से फिनाइल एलानिन बनता है, राइट। फिर वापस केमिकल मेथड डेवलप किया हरगोबिंद खुराना ने, राइट, जहां पर उन्होंने होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर दोनों को यूज किया, रिपीटिंग सीक्वेंसेस यूज किए CU के, राइट। एंड अल्टीमेटली अब हम नाम यहाँ पर सेव्रो-ओका एंजाइम, सेव्रो-ओका एंजाइम इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, दैट्स द नेम ऑफ द सेव्रो-ओका एंजाइम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, राइट, जो एक्चुअली एमआरएनए को पॉलीमराइज करेगा और सीक्वेंस को डिफाइन और फॉर्म करेगा इन द टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, नॉट अ टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर बट टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। फाइनली अब हमने एक चेकर बोर्ड बनाया है इसका, और ये चेकर बोर्ड कैसे बनाया वो बहुत ध्यान से कि हमने बनाया कैसे और फिर कौन कौन से इसमें हमें याद करने हैं, और इसी के थ्रू मैं सारी प्रॉपर्टीज समझाऊंगी इसकी, राइट। तो अब एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज टेबल के थ्रू समझते जाना। एवरीवन एबल टू सी दिस? और थोड़ा जूम और करूं, जूम और कर देते हैं थोड़ा, राइट। तो सबको क्लियर हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर सबको? फाइन, राइट। अब देखो, जब मैंने ये टेबल बनाई है बेटा, राइट, व्हेन आई फॉर्म दिस टेबल, जब मैंने ये टेबल को फॉर्म किया है, राइट, तो इस टेबल को फॉर्म करते टाइम मैंने सबसे पहले कहा है आपको जो भी कोडॉन डिजाइन करना है, राइट, व्हाटएवर कोडॉन यू आर गोइंग टू डिजाइन, उस कोडॉन में आपने एक काम करना है कि आपने पहली पोजीशन सेट करनी है, तीसरी पोजीशन सेट करनी है। लेट्स सपोज कोडॉन मैंने लिखा है यहाँ पर कोई भी है, ABC मैंने लिखा, तो A represent the first position, B represent the second position, and third represent the third position, right? और ये थर्ड पोजीशन को ही हम हमेशा वेरिएबल करते हैं। फर्स्ट और सेकंड को मैं स्टैटिक कर देती हूँ। कैसे? अब मैंने कहा फर्स्ट मेरे पास U है, देखो फर्स्ट को मैंने UCA लिया, फिर सेकंड को भी मैंने UCA लिया, लेकिन थर्ड को मैंने हर ब्लॉक में वेरिएबल कर दिया। तो मेरे पास ट्रिपल U, UUC, UUA, UUG। अब इन तीनों में अगर चारों में मुझे देख के बताओ कौन सी पोजीशन डिफर कर रही है? इज द थर्ड पोजीशन डिफरेंट, सेकंड पोजीशन डिफरेंट, और द फर्स्ट पोजीशन डिफरेंट, राइट? कैन आई हैव द थर्ड पोजीशन व्हिच इज गोइंग टू बी डिफरेंट? एक एक करके मुझे आंसर करते जाना, तभी प्रॉपर्टीज क्लियर होगी, राइट। एंड बी फ्रीक्वेंट, फिर मैं लिखवाऊंगी इसके बारे में, राइट। तो बिल्कुल हमारे पास थर्ड पोजीशन चेंज आ गई, थर्ड पोजीशन पे चेंज हो रहा है। हर ब्लॉक में अगर देखोगे तो हर ब्लॉक के अंदर, हर एक स्क्वायर, छोटे से स्क्वायर बॉक्स के अंदर, राइट, यू हैव एवरी टाइम थर्ड पोजीशन डिफरेंट, बट फर्स्ट और सेकंड पोजीशन सेम है। वहीं पर अगर आप दो ब्लॉक्स को कंपेयर करोगे तो दोनों ब्लॉक्स की फर्स्ट और सेकंड पोजीशन अलग है,
दोनों ब्लॉक्स में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन अलग है, करेक्ट ना, राइट, और थर्ड भी अलग है, लेकिन थर्ड किसी पॉइंट पे सेम भी हो सकती है, राइट, ये दोनों लाइन सबको क्लियर हो गई, राइट, सो ऑन दैट बेसिस हमने ये चीज पहले सबसे पहले स्टेट करी। अब हमने कहा, राइट, इसी के बेसिस पे नाउ सी भैया, अब मेरे पास टोटल जो यहाँ पर बने हैं, टोटल कोडॉन्स आई एम हैविंग 64 कोडॉन्स, 64 codons are coding for 20 amino acid, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसके बेसिस पे दो प्रॉपर्टी फिक्स कर दी, दैट इज द नॉन एम्बिगुअस एंड अनदर वन इज डीजेनरेसी। अभी नॉन एम्बिगुअस और डीजेनरेसी क्या है, ये प्रॉपर्टी क्लियर करनी है। नॉन एम्बिगुअस का मतलब अ कोडॉन कोड फॉर सिंगल अमीनो एसिड। अगर मैं ट्रिपल यू कहूंगी ना, तो ट्रिपल यू इस अर्थ पे किसी भी सेल पे देख लो, वेदर प्रोकैरियोटिक वेदर यूकैरियोटिक, इट विल कोड फॉर फिनाइल एलानिन ओनली, ये इसी के लिए कोड करेगा। तो नॉन एम्बिगुअस का मतलब वन कोडॉन कोड फॉर वन अमीनो एसिड, एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड देगा अगर वो कोड कर रहा है तो, राइट, एक से ज्यादा अमीनो एसिड एक कोडॉन नहीं दे सकता। लेकिन अगर इस टेबल में देखोगे तो एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से कोड हो रहा है, एम आई राइट, वन अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, कैसे, राइट, एक अमीनो एसिड, लेट सपोज इफ आई हैव टेकन फिनाइल एलानिन, तो फिनाइल एलानिन बेटा एक ही कोडॉन से कोड हो रहा है या एक से ज्यादा पे कोड हो रहा है, राइट, तो उसका क्या देती, जेनरेसी, वी डिफाइन दैट एज द डीजेनरेसी, दैट इज one amino acid can be coded by multiple codons, right, तो एक अमीनो एसिड मल्टीपल कोडॉन्स कोड कर सकते हैं, तो डीजेनरेसी, एक कोडॉन एक अमीनो एसिड कोड करेगा तो नॉन एम्बिग्विटी, राइट, व्हाट वी नेम द फीचर एज नॉन एम्बिग्विटी। अब ये यहाँ तक का पॉइंट, राइट, अब अगर इसमें हम देखें बच्चे, तो एक, अब इसमें देखना, लेट सपोज ये मैंने पूरा लिया सीरीन, इस पूरे ब्लॉक में सीरीन में क्या हर एक कोडॉन, इस पूरे ब्लॉक के चारों कोडॉन सीरीन ही दे रहे हैं, और चारों कोडॉन में डिफरेंस सिर्फ थर्ड पोजीशन पे है, मींस दैट द थर्ड पोजीशन ऑफ अ कोडॉन, जो थर्ड पोजीशन है, इट इज रेफर्ड एज अ डीजेनरेट पोजीशन, राइट, कि जो कोडॉन की थर्ड पोजीशन है उसे आप क्या कहते हो, डीजेनरेट पोजीशन। अगर आप उस पोजीशन को हटा भी दोगे, उस पोजीशन को चेंज भी, हटा मींस चेंज भी कर दोगे, तो शायद अमीनो एसिड पे फर्क ना आए, राइट, तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, लेट्स सपोज आई से बच्चे, राइट, मैंने यहाँ एक वर्ड लिया ए ट्रिपल यू, सी फॉर दिस ए ट्रिपल यू कहाँ पर है, एंड देन मुझे बताना है इसमें आई हैव टेकन अ कोडॉन एज ए ट्रिपल यू, राइट, अब अगर ये ए ट्रिपल यू मेरे पास कोडॉन है, राइट, इसमें से मैं इसको ए ट्रिपल यू की जगह ए यू सी कर दूं, राइट, ए यू यू की जगह एसिड रिमेन सेम और डिफरेंट, क्या अमीनो एसिड सेम है या डिफरेंट हो चुका है हमारे पास, यस, एवरीवन इन द क्लास, इफ आई हैव ए यू यू और मैं ए यू यू को चेंज करके ए यू सी कर दूं, इज माय अमीनो एसिड सेम और डिफरेंट, सेम, वेरी गुड, मींस इन दोनों में Same. कौन सी पोजीशन डिफर हुई, इन दोनों में कौन सी डिफर हुई, डिफरेंट कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से थर्ड पोजीशन ना, अगर थर्ड पोजीशन डिफरेंट है तो कैन आई नेम थर्ड पोजीशन एज अ डीजेनरेट पोजीशन, थर्ड पोजीशन because it is leading to the degeneracy, it is leading to degeneracy का मतलब, राइट, जो हमारे पास किसमें लीड कर रहा है, अनलीडेड इंफॉर्मेशन में लीड कर रहा है, राइट, तो अब हमने यहाँ पर डिफाइन किया इसको बिल्कुल, राइट, नाउ लेट सपोज मेरे पास ए यू यू है, वापस से वही एग्जाम्पल, अब डब्ल्यू में आपको क्या देगा, आई हैव
Okay, is it fine, everyone? Are you able to hear me? Yes, ma'am. okay. Yes, ma'am. Okay, fine, good. So let me share the screen again and let's start the topic again. Yeah, I'll repeat the question. I'll repeat the question again. Question भी repeat करती हूँ. Just wait. Okay, guys. Right. So in between थोड़ा network का problem था. No worries. देखते हैं. Okay, everyone. So we says basically बच्चे, right? हमने कहा यहाँ पर हमारे पास genetic code जो है basically, right? उसमें मैंने आपको कहा, let's suppose I've given you the two conditions, right? मैंने अभी लिया था AW लिया था ना? If I have taken you the W, अगर मैंने AW codon लिया है, W को I change to AUC, मैंने AUC कर दिया, तो AW को AUC कर मैंने ये देखा कि मेरे पास देयर इज नो चेंज विच इज कमिंग अप, कोई चेंज मेरे पास नहीं आया, राइट? किसके अंदर? अमीनो एसिड के अंदर, क्योंकि अमीनो एसिड अभी मेरे पास सेम आ रहा है, आइसोल्यूसिन आ रहा है. आई एम हैविंग द सेम अमीनो एसिड एज द आइसोल्यूसिन, राइट? लेकिन अगर मैंने कहा यहाँ पर AW को मैंने CW कर दिया, AW को आई हैव चेंज टू CW. टेल मी गाइस, इज देयर अ चेंज और नॉट? क्या उसमें चेंज आएगा या नहीं आएगा मेरे पास? क्योंकि ये पॉइंट अगर क्लियर नहीं हुआ ना, तो आगे बूबल हाइपोथेसिस जो मैं समझाने वाली उसमें दिक्कत आ जाएगी, राइट? चेंज आएगा, बिल्कुल चेंज आ गया, राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट. इसका मतलब अगर मैं आपको सिर्फ इतना कहूं कि एक जेनेटिक कोड को पढ़ते टाइम फर्स्ट एंड सेकेंड पोजिशन आर फिक्स्ड एंड थर्ड पोजिशन इज डीजेनरेट. थर्ड पोजीशन हो सकता है जो डीजेनरेसी कॉज कर दे, थर्ड पोजीशन हो सकता है जो डीजेनरेसी कॉज कर दे कि अमीनो एसिड पे फर्क ना आए. लेकिन अगर फर्स्ट और सेकंड में चेंज आ गया तो अमीनो एसिड पे फर्क पक्का आएगा, राइट? एक म्यूटेशन याद है आपको, मैंने पढ़ाया था सेम सेंस म्यूटेशन. मैंने कहा था सेम सेंस म्यूटेशन के टाइम क्या होता है बच्चे, जब म्यूटेशन हो जाती है तो उस म्यूटेशन की वजह से अमीनो एसिड में चेंज आता ही नहीं है, राइट? म्यूटेशन हो गई बट स्टिल देयर इज नो चेंज इन द अमीनो एसिड. रिमेंबर, राइट? हमने 3 म्यूटेशंस पढ़ी थी, सेम सेंस म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन एंड नॉन सेंस म्यूटेशन. और वहां उन म्यूटेशंस में हम क्या कह रहे थे, दैट म्यूटेशंस आर गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ द चेंज इन द सिंगल, राइट? इसमें चेंज हो रहा है मेरे पास सिंगल बेस पे चेंज हो रहा है, एक ही बेस आप चेंज कर रहे थे ना जिसकी वजह से आ रहा था वो म्यूटेशन, राइट? तो मुझे फटाफट समझाओ मिस सेंस म्यूटेशन में क्या होता था, राइट? व्हाट हैपेंड इन द मिस सेंस म्यूटेशन? मिस सेंस म्यूटेशन में हम क्या लेके चलते थे? यस, मिससेंस म्यूटेशन में हम कहते थे ना कि इफ देयर इज अ चेंज इन दी, राइट? किस पे चेंज हुआ? आपने एक बेस पे भी चेंज किया तो उसकी वजह से आपका अमीनो एसिड भी चेंज हो जाएगा. लेकिन हम वहीं पर क्या कहते हैं, नाइन मिससेंस के बाद सेम सेंस म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पर आपने एक बेस पे चेंज किया, यू आर नॉट गोइंग टू एनकाउंटर एनी चेंज, आप कोई भी चेंज डिफाइन नहीं करोगे इन दी अमीनो एसिड, मींस अमीनो एसिड में चेंज नहीं होगा. सेम सेंस म्यूटेशन के टाइम आपने बेस चेंज कौन सी पोजीशन पे किया होगा? You have done the base change at which position? First, second और third में से कौन सी position पे change करोगे ताकि same sense mutation आ सके, right? Same sense mutation generate हो सके, right? So we will say that change has to be done based on the third. Very good, on the third position. अब समझ आ गया सबको degeneration और non-ambiguous का nature, right? तो अब इसी के बेसिस, right, we are going to talk about the properties for the genetic code. एक एक करके properties बहुत अच्छे से, right? अगर मैंने कहा यहाँ पर properties of the genetic code को define किया, तो I'll say the major properties of the genetic code are, major properties genetic code की क्या है? सबसे पहले तो कि उसका nature कैसा है, triplet है. हमने कहा the codon has to be triplet in nature, कि codon को triplet होना चाहिए, right? उसी के साथ triplet codon में ना सबसे main चीज ये ध्यान रखना, जो 64 codons आए हैं, 64 में से 61 codons जो है ना आपके, they are called as the functional codons. 61 codon functional codon है, लेकिन वहीं पर 3 codons जो हैं आपके वो कैसे हैं? they are called as the stop codons, right? अब stop codons और functional codons का meaning, right? 61 codons वो हैं जो अमीनो एसिड को कोड करते हैं, right? functional का मतलब which will code for the amino acid. लेकिन 3 जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, rather वो पूरे प्रोसेस को स्टॉप करा देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टॉप कोडॉन. रिमेंबर नॉनसेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन में हमने क्या कहा था कि जो हमारे पास जेनेटिक कोड है, राइट, वो किसमें चेंज हो जाता है? हमारे पास स्टॉप कोडॉन में, जिसकी वजह से वो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता, प्रोटीन की सिंथेसिस वहीं पर रुक जाती है, राइट? उसे हम डिफाइन करते हैं एज द पॉइंट, ये द 3 कोडॉन्स आर द स्टॉप कोडॉन व्हाइल दी are going to be the right functional codon जो हम यहाँ पर स्टेट करते हैं.
नेक्स्ट हमने कहा जब आप कोडॉन को लिखते हो तो उसे कॉन्टेजियस फैशन में लिखना चाहिए, विद मीन्स आप लिखते टाइम AUG को लिख रहे हैं तो बीच में कॉमा नहीं आना चाहिए, या बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए। AUG लिखना है तो कंटिन्यूअस लिखा जाएगा, राइट। वन कोडॉन हैज टू बी रिटन विद ऑल द 3 अल्फाबेट्स इन अ कंटिन्यूअस मैनर, राइट। फिर उसके बाद हमने कहा डीजेनरेसी। नाउ डीजेनरेसी का मीनिंग दैट द सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन। हाँ, यहाँ सम जरूर है क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो हम कहते हैं सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय दिस, द कोड इज कॉल्ड डीजेनरेट, लाइक सीरीन, ल्यूसीन, आर्जिनिन बाय 6, प्रोलीन, वेलिन, ग्लाइसिन, एलानिन एंड थ्यूरिन बाय दी 4। इसमें से 2 कोडॉन बेटा इस टेबल में ऐसे हैं, राइट, जो हमारे पास ऐसे जो नॉन डीजेनरेट कोडॉन है, राइट। अब एक का मैं यहाँ पर बताती हूँ, वन इज कॉल्ड AUG। AUG इज बीइंग द वन जो कोड करता है मिथ्योनिन के लिए, जबकि बाकी के AUA, AUC, AUA, राइट, ये सब आइसोल्यूसिन के लिए कोड करते हैं। लेकिन AUG एक अकेला ऐसा है मेरे पास जो किसके लिए कोड करेगा, दैट इज गोइंग टू बी कोड फॉर द प्रोसेस ऑफ द मिथ्योनिन, जो मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा। नेक्स्ट UGG एक ऐसा है मेरे पास, राइट, जो कोड करेगा ट्रिप्टोफैन के लिए, राइट। तो UGG will code for tryptophan and AUG will code for methionine, which are the non-degenerate codon. Else अगर आप देखोगे तो सीरीन के लिए 6 हैं, 4 ये हैं, राइट, और 2 ये वाले कोडॉन्स हैं, राइट। उसी के साथ साथ आर्जिनिन के लिए भी आपके यहाँ पर 6 हैं, वन इज AGA and AGG and another is all the C कॉलम, CG कॉलम है आपका यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट उसी के बाद आपने यहाँ पर डिफाइन किया हर एक के लिए, ऐसे लाइक ग्लाइसिन के लिए 4 है, राइट। तो हमें हमारे पास इतने सारे सबके लिए अलग अलग वेरिएबल नंबर्स आपके प्रेजेंट हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड एज द डीजेनरेसी। फिर हम कहते हैं यूनिवर्सल नेचर। यूनिवर्सल नेचर कहने का मतलब कि जो आपने जेनेटिक कोड बना दिया, राइट, अगर वो आपने प्रोकैरियोट में कह दिया कि भाई AUG मिथ्योनिन को कोड करेगा, तो मैं यही कहूंगी कि यूकैरियोट में भी AUG मिथ्योनिन को ही कोड करेगा, उसके अलावा AUG और किसी को कोड नहीं कर सकता, राइट। सो दैट कैरेक्टर इज डिफाइंड एज द यूनिवर्सल कोड, इट इज गोइंग टू बी यूनिवर्सल इन नेचर, like triple U will code for phenylalanine in all the one. It is only an exception in the mtDNA. माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटोजोआन में ही सिर्फ 2 में एक्सेप्शंस हैं, राइट, जो हमें फाउंड होती हैं। mtDNA के एक्सेप्शंस मैं आपको एंड में कराऊंगी, राइट। तो हमने कहा mtDNA माइटोकॉन्ड्रियल DNA के अंदर ही कुछ चेंजेस है जिसके बेसिस पे आप ये डिफाइन कर सकते हो, राइट। फिर इनिशिएशन और स्टार्ट कोडॉन, AUG इज बीइंग द वन, राइट, जो हमने कहा। तो हम कहते हैं AUG के 2 फंक्शन है, राइट। एक फंक्शन तो हो गया मिथ्योनिन से बाइंड करना, right, and the another function is basically being the one that it act as the initiator codon or the start codon. Translation को शुरू कराने के लिए हमारे पास AUG is going to be responsible, fine, right, समझ आया यहाँ तक का point, right। तो AUG हमारे पास वर्क करता है for the initiation means starting of the process, process को start करने के लिए। फिर हमने कहा stop codon। stop codon में अभी कितने बताए, 3 stop codons are there, 3 punctuation codons are there, 3 we can say nonsense codons are there, we can say 3 stop codons or termination codons are there, right, that is UAA, UAG and UGA। बहुत सिंपल है, राइट। कौन कौन से होगा हमारे पास, UAA, UGA and UAG, राइट। अब जो हमारे पास स्टॉप कोडॉन है बेटा, स्टॉप कोडॉन जो है बेसिकली दे कैन नॉट कोड फॉर द अमीनो एसिड, किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकते, राइट। तभी हम इसको क्या करते हैं, स्टॉप कोडॉन्स को वंस दे आर बीइंग प्रेजेंट दे विल टर्मिनेट द सिग्नल, राइट। दैट्स व्हाई हम इसको स्पेसिफिकली कहीं भी इन बिटवीन नहीं देते, क्योंकि अगर मान लो आपने इन बिटवीन दे दिया तो पॉलीपेप्टाइड बनेगी नहीं, राइट। सो पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन होगी नहीं। अब इसके कॉमन नेम याद रखना, ओक्रेअम्बरोपाल, राइट, UAA, UAB एंड UGA, राइट। देन हमने कहा कोडॉन शुड बी नॉन ओवरलैपिंग, राइट। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब, राइट, नॉन ओवरलैपिंग मींस हर कोडॉन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। द नेक्स्ट कोडॉन जो है हमारे पास डज नॉट ओवरलैप द अनदर कोडॉन, उसके साथ कंपीट भी नहीं करेगा और ओवरलैप भी नहीं करेगा, राइट। सो दैट्स द पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड एज इन नॉन ओवरलैपिंग कोडॉन, फाइन, राइट। सो सबको क्लियर हो गया यहाँ तक जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज, एवरीवन डन, यस गाइस, कंप्लीटेड यहाँ तक जेनेटिक कोड, डीजेनरेसी, नॉन एम्बिग्विटी सॉरी, एंड along with this whole process, right, good, okay guys। ओवरलैपिंग का मतलब जैसे हम लेट्स सपोज चलो AUG, GUG, UCA, राइट। देखो ये आपने बनाया इस तरीके से, राइट, बट यू विल से नो, वी विल डू समथिंग डिफरेंट, one codon for this, another for this, next for this, in this means आप क्या कर रहे हो,
राइट देखो यहाँ पर आपने AUG लिया, आपने GUG लिया, आपको कोडॉन ऐसे बनाना चाहिए था ना। आपने कहा मैम ये तो ठीक है, अब अगला कोडॉन यहाँ से शुरू कर देते हैं, फिर उससे अगला कोडॉन यहाँ से शुरू कर देते हैं, दैट इज ओवरलैपिंग। तो वो ओवरलैपिंग नहीं दिखनी चाहिए। अब समझ आ गया? राइट सान्या? कंप्लीट। अब इसी के नीचे लिखो, right below it, genetic code share the most important two properties. Genetic code share the most important two properties, right? As number first, non-ambiguity. Two spatial properties as number first, non-ambiguity. Non-ambiguity. उसी के आगे कोलन डाल के, non-ambiguity के आगे, non-ambiguity के आगे कोलन डाल के, one codon code for only one amino acid. One codon code for only one amino acid. Code for only one amino acid. One amino acid in all the organisms over Earth. In all the organism over Earth. Over Earth. Except, exception याद रखना इसका जो लिखने जा रहे हो, except GUG, except GUG in prokaryotes, except GUG in prokaryotes, if it is present at initiation, where if it is present at initiation, if it is present at initiation, code for, if it is present at initiation, code for methionine, present at initiation, code for methionine, while during elongation, code for valine. While during elongation, code for valine. Code for valine. समझ आया पॉइंट? अभी हमने क्या कहा कि एक कोडॉन एक अमीनो एसिड देगा, लेकिन GUG दो अमीनो एसिड दे रहा है। अगर इनिशिएशन में प्रेजेंट है, मींस स्टार्ट कोडॉन की तरह काम कर रहे हैं, राइट? तब आपने उसको कोड करा मीथियोनिन को, लेकिन वहीं पर अगर जब बीच में प्रेजेंट है तो स्टार्ट कोडॉन की तरह नहीं, क्या उसे चेंज कर दिया, कोड फॉर वेलिन। रिमेंबर दिस पॉइंट एवरीवन? सबको क्लियर हो गया अच्छे से? नॉन एम्बिग्विटी, राइट? नाउ सेकंड, डीजेनरेसी. सेकंड, डीजेनरेसी. Degeneration. Dash. One amino acid can be coded by more than one codon. One amino acid can be coded by more than one codon. More than one codon. Fine. Right. More than one codon. Valine, beta, it codes for valine, Manchika. Right. Full stop. Degeneracy is because of third position of genetic code. Degeneracy is because of third position of genetic code, which on variability, third position of genetic code which on variability generally leads to same amino acid. Fine, right? Everyone clear यहाँ तक? Right?
डीजेनरेसी में एक्सेप्ट मेथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन. Right, except methionine and tryptophan. Methionine and tryptophan. Completed यहाँ तक point. Everyone done with genetic code. सबको समझ आ गई है सारी properties. Right, किसी को भी कोई भी doubt यहाँ तक फटाफट से. Any specific doubt till this point to anyone? Done? Very good. आगे बढ़ जाए हम. जेनेटिक कोड पे नीट में एक क्वेश्चन फिक्स है, याद रखना हमेशा, हर एक क्वेश्चन इसकी प्रॉपर्टी पे. राइट, तो इसमें आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट दिमाग में रखना ही नहीं है. राइट, तो अब हमने जेनेटिक कोड कंप्लीट किया. अब जेनेटिक कोड के बेसिस पे ही ना मैं अब एमआरएनए का स्ट्रक्चर बताऊंगी आपको. बाय डोंट स्टॉप कोडॉन. स्टॉप कोडॉन इसी वजह से कोड नहीं करते बेटा, बिकॉज स्टॉप कोडॉन आर द वन जिनका काम है टर्मिनेशन कराना ट्रांसलेशन का. राइट, इसीलिए हमने उसे नाम दिए. 64 में से हर कोडॉन फंक्शन नहीं करता, दिया ही नहीं था, रादर वो प्रोसेस को रोक रहे थे आगे. स्टॉप कोडॉन. ठीक है अंकुर? राइट, कंप्लीट यहां तक. नाउ मूविंग टू द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए. राइट, सो कमिंग अप टू बी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए. अब बहुत ध्यान से एक पॉइंट क्लियर करके. राइट, डिटेल्ड स्ट्रक्चर पहले भी आपका एमआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन सिर्फ इसमें अब मैं कोडॉन्स के बेसिस पे पढ़ाऊंगी. तो सबसे पहले पे आते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए. पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए प्रोकैरियोट यूकैरियोट. पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, किसके अंदर दे दूं? प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स. Yes, everyone in the class, be ready with the answer बच्चा, जल्दी जल्दी. Prokaryote, not eukaryotes हो या. Polycistronic in the case of the prokaryotes. ठीक है? Right, okay guys. Now let's talk about this. So this is the mRNA with us, 5 prime to 3 prime. This is the sequence. Right, अब आ जाओ यहाँ पर. इसमें हमने कहा ये सीक्वेंस 5 प्राइम UTR हम कहते हैं. आज मैं इसमें एक सीक्वेंस लिख रही हूँ, SD सीक्वेंस. पढ़ाऊंगी मैं ट्रांसलेशन के टाइम, लेकिन एक सीक्वेंस मैंने मेंशन किया, SD शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस. SD सीक्वेंस इज कॉल्ड एज द शाइन डेलगार्नो sequence. Right, now this one has n called 3 prime UTR. Over here cistron 1 and over here cistron 2. Polycistronic का ये मीनिंग है. तो we will say this is the cistron 1 and this is the cistron 2. Right, on that basis we say cistron 1 की शुरुआत AUG UAA AUG UAA. ये समझ आया मैंने क्या लेबल किया? और बीच में ये सेगमेंट इंटरसिस्ट्रॉनिक सेगमेंट. इज इट फाइन? जहां मैंने क्या कहा यहाँ पर, दिस AUG वर्क एज दी, जहां से पॉलीपेप्टाइड बननी शुरू होगी, स्टार्ट कोडॉन. UAA वर्क एज दी स्टॉप कोडॉन. इसका मतलब ये पूरा मिलके क्या देंगे? पॉलीपेप्टाइड 1. पूरी पॉलीपेप्टाइड 1 बन जाएगी. यहाँ पर ये मेरे पास वापस से इनिशियल और स्टार्ट कोडॉन, और ये मेरे पास स्टॉप कोडॉन, एंड ये वापस मुझे मिलके क्या देंगे? पॉलीपेप 2. हो गया कंप्लीट? समझ आया सबको स्ट्रक्चर? अंडरस्टूड यहाँ तक? राइट, सो दिस इज कॉल्ड पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोट. तो आपने सिस्ट्रॉन्स के बेसिस पे आपने डिफाइन कर लिया. सेकंड अब आपके पास आ गया मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA. In the case of
right? Monocystronic mRNA. In the case of the eukaryote, monocystronic का मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चा? Right, we says we are going to have only single cistron ना, तो हमारे पास ये सीक्वेंस आ गया. तो हमने कहा 5 प्राइम और यहाँ पर हम क्या लगा दें एंड में पॉली ए टेल, यहाँ पर लगा दे 5 प्राइम कैप, ये हो गया 5 प्राइम यूटीआर, ये हो गया 3 प्राइम यूटीआर. इज इट फाइन? राइट. अब 5 प्राइम यूटीआर पे मैंने एक स्पेशल सीक्वेंस डिग्निफाई किया कॉल्ड कोजेक सीक्वेंस. जो एसडी सीक्वेंस है ना, उसी का नाम है कोजेक सीक्वेंस इन दिस. एंड दिस इज द कंप्लीट सिंगल सिस्ट्रॉन. एक अकेला सिस्ट्रॉन जिसका पहला कोडॉन AUG और आखिरी वाला मेरे पास UA. कोई भी हो सकता है बेटा, UA, UAG, UGA. आई हैव जस्ट टेकन UA. राइट, मैंने बस लिया है इसको. तो ये मेरे पास सिस्ट्रॉन कंप्लीट 1, और जब ये आगे ग्रो करेगा it is going to follow only polypeptide 1. Is it fine now? Right, तो हमने कहा only polypeptide 1 के हमने यहाँ पर फॉर्मेशन कर दी. राइट, तो ये हमारे पास प्रोसेस हो गया फॉर द मोनोसिस्ट्रॉनिक. दिस पॉइंट टू एवरीवन कंप्लीटेड यहाँ तक. स्टार्ट कोडॉन स्टॉप कोडॉन वाला पॉइंट. राइट, कोजेक सीक्वेंस, एसडी सीक्वेंस. अब ऐसे ही mRNA के आगे we are going to talk about the second one which is called as tRNA. अब हम पढ़ेंगे tRNA के बारे में. राइट, ओके, स्क्रॉल अप. फाइन बच्चे, प्रोकैरियोट का देख लो, फिर यूकैरियोट पे आ जाती हूँ. हाँ जी, तो अब हम मेन स्टार्ट करेंगे बेटा ट्रांसफर आरएनए अडाप्टर मॉलिक्यूल tRNA के बारे में. ओके, गुड. राइट, अब आ जाते हैं tRNA. tRNA का नाम क्या? राइट, जस्ट वेट 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 वेट. Is it fine guys? Voice is coming. कोई problem? Voice related? Right. So this is what we stated about till here. Right. अभी ठीक है, ब्रेकिंग तो नहीं है वॉइस. इट्स फाइन नाउ. गुड. तो अब हमने tRNA स्टार्ट करें. mRNA हो गया सबका कंप्लीट. राइट, तो अब tRNA का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. राइट, नाउ फाइन. ओके, गुड. राइट, tRNA इज कॉल्ड एज बच्चे ट्रांसफर RNA, also called soluble RNA. tRNA को नाम देते हैं हम ट्रांसफर RNA बिकॉज इसकी जॉब क्या है? अमीनो एसिड का ट्रांसफर करना. राइट, इसका काम है अमीनो एसिड को लेके आना. राइट, अब अमीनो एसिड कैसे लेके आते हैं और कैसे हमें पता चलता है कि ये कोडॉन यही अमीनो एसिड देगा, आज हम वो समझेंगे अच्छे से. soluble इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज इजीली solubilized in the cytosol of the cell और बेसिकली न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस, उसमें बड़े इजीली solubilized हो जाते हैं. राइट, एंड इट इज बीइंग द वन बेटा जो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, सिंगल स्ट्रैंडेड 5s RNA से हम कहते हैं. इसका सेडिमेंटेशन क्वेश्चन है 5. राइट, जैसे हम कहते हैं ना 80, 23s, 28s, 16s, ऐसे स्ट्रैंडेड है, ट्रांसफर आरएनए है. इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग टाइप, हैविंग द क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर. राइट, इसमें प्रेजेंट है. और क्या स्टॉक में आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ इसका, फिर मैं स्टेट.
Okay guys, now in this है, बस इसके स्ट्रक्चर को अपना फोल्ड कर रखा है, बहुत सारे फोल्ड्स है इसमें। तो वन एंड इज लूप है, राइट, राइबोसोम बाइंडिंग लूप, और उसी के अपोजिट एक लूप है व्हिच इज कॉल्ड एंटीकोडॉन। अगर इसे दिखेगा पूरा स्ट्रक्चर, राइट, तो हम कहते हैं बेसिकली इट्स गोइंग टू बी अ soluble, हमने इसे नाम, right, it is going to have these particular loop like structures which are going to be present, right। अब ये कैसे वर्क करते हो, कैसे बना ये स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले इस पे आ जाते हैं, राइट। तो एक एक करके बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप पॉइंट समझ रहे हैं, राइट। हमने कहा ये 5 प्राइम एंड ये 3 प्राइम एंड, राइट। 5 प्राइम की तरफ आपने यहाँ पर ऐसे आर्म बनाई, यहाँ पर आर्म बनाई, टू दिस ओवर हियर, टू दिस ओवर हियर, एंड अ वेरिएबल लूप एट दिस पॉइंट, and then you form to this। यहाँ पर आपने कुछ स्वेलिंग्स दे दी, स्वेलअप हो गया स्ट्रक्चर, उसको डिफाइन कर दिया। वी से बेटा हमने कहा साथ साथ में बनाते चल जाना। 3 प्राइम पे एक स्ट्रक्चर है CCA, इसे मैं नाम देती हूँ CCA आर्म, which is called as amino acid binding arm। ये अमीनो एसिड बाइंडिंग आर्म है। इस पर्टिकुलर आर्म से हम अमीनो एसिड की बाइंडिंग कराते हैं, राइट। तो वी विल डिफाइन इट एज द अमीनो एसिड बाइंडिंग आर्म, CCA आर्म, जिसमें हम अमीनो एसिड को बाइंड कराते हैं, राइट, उसे हम डिफाइन करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, जो ये आर्म है मेरे पास, इसको मैंने नाम दिया T5C आर्म और T5C लूप, इसको मैंने डिफाइन किया, राइट। T5C लूप इज द साइट जहां पर राइबोसोम बाइंड करते हैं, so it is called as ribosome binding loop, while this arm is called as the DHU loop, जहां पर एक एंजाइम बाइंड करेगा अमीनो एकाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम, ये बाइंड करता है, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड एज दी एंटीकोडॉन लूप, इसे हम कहते हैं एंटीकोडॉन लूप। और ये जो एक बीच में आर्म आती है, इसे हम डिफाइन करते हैं वेरिएबल लूप, राइट। देखो tRNA इज बीइंग द स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्लोवर लीफ मॉडल, राइट, एज अ 2D स्ट्रक्चर, एंड 3D से इन्वर्टेड एल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, राइट। तो ये हमारे पास का 2D स्ट्रक्चर जो हमने गिवन है, राइट। इस स्ट्रक्चर में हमने डिफाइन किया कि इट इज गोइंग टू हैव द CCA आर्म, राइट। ओवर द टॉप इस पे CCA आर्म प्रेजेंट है एज द अमीनो एसिड बाइंडिंग आर्म, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर इसमें T5C आर्म प्रेजेंट है, T5C लूप प्रेजेंट है, और T5C लूप के सामने ही हमारे पास DHU लूप है। अब T5C का मतलब क्या है बेटा, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस T5C? T5 इसके अंदर एक स्पेशल ना कोड है, राइट, स्पेशल बेस है T5, एंड T5 इज कॉल्ड एज अ सूडो यूरिडीन। अच्छा, सबको पता है हम यूरेसिल लिखते हैं, इसमें थाइमीन तो होता नहीं है आरएनए के अंदर, तो T5 का मतलब एक यूरिन का एक यूरिन का एक आपका आइसोमेरिक फॉर्म है व्हिच इज कॉल्ड सूडो यूरिडीन, एंड C का मतलब हो गया साइटोसिन, राइट। ये दो चीजें इसमें सबसे मेन है। DHU लूप का मतलब इट इज गोइंग टू हैव DHU व्हिच इज कॉल्ड यूरिडीन बेस प्रेजेंट है, की डिफरेंट फॉर्म्स है, राइट, जो इसमें प्रेजेंट है। का काम है कि साइटोप्लाज्म में जो अमीनो एसिड का पूल है उसमें से अमीनो और mRNA के पास लेके जाना, राइट। अब हाउ इट इज गोइंग टू, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ आया सबको, तो मैं आगे बढ़ूं इसके ऊपर। एवरीवन कंप्लीटेड विद द स्ट्रक्चर, राइट। CCA आर्म, ये चीजें ना फिक्स हैं, CCA फिक्स है, T5C फिक्स है, DHU फिक्स है, ये तीनों चीजें कभी चेंज नहीं होंगी किसी भी टाइप के tRNA पे, लेकिन एंटीकोडॉन लूप पे एंटीकोडॉन चेंज होता रहेगा, एंटीकोडॉन विल चेंज, राइट। अब हमें यही देखनी है कि एंटीकोडॉन के चेंज होने का मतलब क्या है, राइट। नाउ सी वी सेज दिस इज द mRNA, ये मैंने कहा ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम मेरे पास mRNA प्रेजेंट है, ठीक है। mRNA के ऊपर अभी मैं एक ही कोडॉन लेके चलूंगी यहाँ पर, और इसी कोडॉन के बेसिस पे कहूंगी AUG। tRNA को कैसे पता चलता है
कि मुझे इस AUG के लिए एक अमीनो एसिड चाहिए, आई नीड अमीनो एसिड फॉर दिस AUG प्रॉपर्ली, वो सबसे पहले अपने कोडॉन को बाइंड, एंटी कोडॉन को बाइंड कराता है, एंड एंटी कोडॉन इज बीइंग द वन जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो A के कॉम्प्लीमेंट्री U के कॉम्प्लीमेंट्री A, G के कॉम्प्लीमेंट्री C, राइट ना, UAC आ गया। तो ये मेरे पास हो गया एंटी कोडॉन। अब tRNA कोडॉन को नहीं, tRNA एंटी कोडॉन से अमीनो एसिड को पहचानता है, mRNA अमीनो एसिड को पहचानता है कोडॉन के थ्रू, लेकिन tRNA अमीनो एसिड को पहचानता है एंटी कोडॉन के थ्रू। तो अगर ये 523 है, राइट, अगर ये 523 है तो मेरे पास ये आर्म, अब मैं बाकी की आर्म्स नहीं बना रही है, इसमें सिर्फ 3 और 5 बना रही हूँ, राइट। तो आई से दिस इज द 3 प्राइम आर्म एंड दिस इज द 5 प्राइम आर्म। 3 प्राइम पे CCA बनाया, CCA के साथ आपने बॉन्ड बना दिया किसका, राइट, विद दी मीथियोनिन। आपने यहाँ पर मीथियोनिन अटैच करा दिया। मीथियोनिन जब आपने अटैच करा दिया तो इस tRNA को आप नाम दिया अमीनो एकाइलेटेड tRNA, जिसने अमीनो एसिड को अपने साथ अटैच करा रखा है। Who has done the amino acid attachment? आपने अमीनो एसिड अटैचमेंट CCA आर्म से कराया और उसके बेसिस पे आपने उसको, right, mRNA and tRNA will attach to each other, and this is what the of tRNA is, that transfer the amino acid, right, को transfer करना from amino acid pool से अमीनो एसिड को ट्रांसफर करना to the site of, किस साइट पे, साइट ऑफ ट्रांसलेशन, जहां आप ट्रांसलेशन करा रहे हो वहां पर लेके आना, और वो किसके थ्रू लेके आता है, विद द हेल्प ऑफ एंटीकोडॉन। ये स्ट्रक्चर सबको समझ आया? अच्छा, यहाँ एक नोटिस किया आपने, मैंने tRNA को इन्वर्ट कर दिया। मैंने जो ऊपर tRNA बनाया था उसमें 3 प्राइम आर्म मैंने इस तरफ बनाया था, लेकिन अब मैंने 3 प्राइम आर्म इस तरफ बनाया, क्यों, राइट, व्हाई आई हैव मेड 3 प्राइम आर्म टू द अपोजिट साइड, क्योंकि 3 प्राइम, अब मुझे 5 to 3 कॉम्प्लीमेंटारिटी चाहिए ना, राइट। तो अगर ये mRNA 5 to 3 है तो tRNA कैसे लगेगा 3 to 5, उसके बेसिस पे। अब समझ आया सबको पॉइंट? अच्छा, अब मेरे को नंबरिंग बताना जरा। अगर मैंने कहा बेटा A की नंबरिंग 1, U की नंबरिंग 2, नहीं कर सकता राना, नहीं कर सकता, उनके हिसाब से एक स्पेसिफिक tRNA बना हुआ है, राइट, जिसकी वजह से बाइंडिंग हो नहीं सकती, ठीक है मेरे पास। अब इसकी नंबर 3 to 1 और 1 to 3, तो 5 to 3 की डायरेक्शन में होती है। अब समझ आया पॉइंट? तो यही कहता है ना कि अगर नीचे वाला 1 to 3 है तो ऊपर वाला कैसे जाएगा, 3 to 1। अब मैं मूवल हाइपोथेसिस से स्टार्ट करूंगी, तो अब एक एक पॉइंट क्लियर करना है। हमारे पास बच्चे कंडीशन क्या है, राइट, स्क्रॉल अप प्लीज, ओके, और ऊपर करूं सान्या, ठीक है। नाउ द कंडीशन इज बच्चे, हमारे पास कंडीशन ये है कि हमारे सेल के पास, राइट, 64 अमीनो एसिड, 64 आपके यहाँ पर कोडॉन्स हैं, राइट, 64 में से 61 कोडॉन्स फंक्शनल है, करेक्ट। अब 61 कोडॉन फंक्शनल है, तो अगर मैं इस रूल के हिसाब से देखूं, जो भी मैंने डायग्राम बनाया उसके हिसाब से मैं देखूं, तो आई गेट नो, राइट, कि मेरे पास एक्चुअल में 61 tRNA होने चाहिए, राइट, यही कंडीशन होनी चाहिए ना, राइट। तो मैंने कहा अगर मेरे पास, मान लो बेटा, राइट, मेरे पास 64 कोडॉन्स हैं, 64 में से 61 फंक्शनल है, तो 61 फंक्शनल है अगर मेरे पास, तो आई हैव एटलीस्ट 61 tRNA प्रेजेंट इन सेल, राइट ना। ये लाइन सबको समझ आती है, 61 tRNA कम से कम होने चाहिए, बट द सैड पॉइंट इज tRNA are only 25 in numbers, tRNA 25 to 27 ही है बस, इससे ज्यादा नहीं। तो नाउ वी से हाउ टू कंपेंसेट, राइट, सो वी हैव टू, हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेंसेट the less number of tRNA with more number of codons,
Now, how we will manage it? We just manage it by a hypothesis which is called Hubble hypothesis. अब ध्यान से देखना इसे Hubble hypothesis क्यों हम कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं उसके अंदर. We say बेटा, let us suppose अगर मैं यहाँ पर सेकंड वाले चेकर बोर्ड पे जाती हूँ, सीरीन वाले पे, सीरीन वाले में देखो, right? If I say triple U is there, which is being talking about the serine, जो मैंने serine लिया है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ serine पे देखूं, right? अगर मैं serine में देखूं, तो serine मेरे पास जो शुरू होगा, that is being the one, right? जो 4 कोडॉन्स दे रहे हैं. अब मैं ये जानती हूँ tRNA तो एंटीकोडॉन को पहचानता है ना, right? और उसके बेसिस पे राइट, टीआरएनए क्या पहचानता है? टीआरएनए एंटीकोडॉन को पहचानता है, और उसके बेसिस पे हो सकता है कि मैं ये चारों कोडॉन्स से जो एक ही अमीनो एसिड आ रहा है, क्या मैं इसके लिए एक टीआरएनए यूज कर सकती हूँ? कैन आई यूज अ सिंगल टीआरएनए फॉर दिस? क्योंकि मेरे पास अमीनो एसिड तो एक ही आएगा ना, तो मैं एक टीआरएनए सेट कर दूं जो सीरीन को लेके आएगा इन 4 के लिए, एक टीआरएनए सेट कर दूं जो प्रोलीन को लेके आएगा, एक टीआरएनए सेट कर दूं जो थ्रियोनिन को लेके आएगा, और एक टीआरएनए सेट कर दूं जो एलानिन को लेके आएगा, राइट? ओके, टेबल इज स्मॉल, फुल स्क्रीन करूंगी तब भी नहीं आता उसमें पूरा. अब ठीक है, अभी क्लियर आ रहा है, राइट? नाउ सी, अब मैंने कहा यहाँ पर कि मैंने सीरीन देखा, तो सीरीन के लिए मेरे पास राइट सब, अगर मैं इसमें देखती हूँ बच्चे, तो आई विल से ओवर हियर कि अगर मैं यहाँ पर सीरीन को इसमें विजुअलाइज करती हूँ, तो सीरीन के बेसिस पे मेरे को सबके सब 3-4 कोडॉन्स मिल रहे हैं, तो मैं क्या इनके लिए कोई भी एक टीआरएनए सेट कर सकती हूँ? क्योंकि वो टीआरएनए मेरे को सीरीन देंगे. एक टीआरएनए सेट कर दूं प्रोलीन के लिए, एक कर दूं थ्रियोनिन के लिए, एक कर दूं एलानिन के लिए, क्या मेरे पास बैलेंस हो जाएगा? डू आई हैव अ बैलेंस ऑफ ऑल, कि मेरे पास टीआरएनए के कम नंबर भी बैलेंस हो जाएंगे? तो मैं अब अगर ऑब्जर्व करूं बच्चे, मेरा बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मेरे पास सीरीन देने वाले जो पहले 4 कोडॉन्स हैं, राइट, सीरीन को देने वाले पहले 4 कोडॉन्स में क्या डिफरेंस है? कौन सी पोजीशन पे डिफरेंस है, राइट? विच पोजीशन इज ऑल्टरिंग? थर्ड. वेरी गुड, थर्ड. तो अगर मैं थर्ड की नॉर्मल पेयरिंग ना करा के वूबल पेयरिंग करा दूं, अब वूबल पेयरिंग कहने का मतलब कि वूबल पेयरिंग क्या होती है मेरे पास, राइट? तो अब मैं वूबल पेयरिंग आपको समझाती हूँ कि वूबल पेयरिंग हम क्या करते हैं, राइट, जिसके बेसिस पे हम ये डिफाइन कर सकते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट, राइट, उसके बारे में आ जाते हैं, राइट? अब ध्यान से देखना है इसमें वूबल पेयरिंग का मीनिंग, राइट, ताकि ये क्लियर हो. मान लो मेरे पास ये कोडॉन है, मैंने कोडॉन यहाँ पर लिया, लेट अस सपोज आई हैव टेकन इट एज AUU, ठीक है, मैंने AUU लिया, फाइन. अब मैंने कहा कि जो मेरे पास AUU है, या मैं इसको, हाँ चलो ठीक है, AUU लेती हूँ. अब मैंने जो एंटीकोडॉन लिया ना, एंटीकोडॉन मैंने लिया A के अपोजिट आ गया U के अपोजिट आ गया A, और मैंने अब ले लिया एक I इज द आइनोसिन. अभी इसके बारे में बताऊंगी आइनोसिन क्या है, राइट? अब मैंने कहा U तो बेस पेयर करेगा A के साथ, A करेगा U के साथ, I और U करेंगे एक दूसरे के साथ वूबल पेयरिंग. वूबल पेयरिंग कहने का मतलब कि अब अगर मैं कोडॉन लेती हूं, इफ आई टेक अ कोडॉन एज AUC, तब भी मेरे पास यही सेम एंटीकोडॉन UAI पेयर कर सकता है, वापस वूबल पेयरिंग. एंड इफ आई टेक अ कोडॉन एज AUA, और अगर मैं एंटीकोडॉन लेती हूं यहां पर UAI, तो ये भी वूबल पेयरिंग कर सकते हैं. अब मुझे ये बताओ, इन सब के लिए एंटीकोडॉन सेम है? इन तीनों कोडॉन्स के लिए एंटीकोडॉन इज सेम ना, राइट? यस, वेट धनंजय, राइट, पहले मुझे इतना समझाओ, इन तीनों कोडॉन्स के लिए एंटीकोडॉन सेम है. अगर एंटीकोडॉन सेम है बेटा, तो मेरे पास क्या tRNA1 इस एंटीकोडॉन का है? क्या tRNA1 वापस इसी एंटीकोडॉन को कैरी कर रहा है, और tRNA1 इस एंटीकोडॉन को कैरी कर रहा है? Now can I say that a single tRNA, एक सिंगल tRNA ने 3 कोडॉन्स के साथ बाइंड कर लिया, 3 कोडॉन्स बाइंडिंग शो कर दी,
राइट, 3 कोडॉन के साथ बाइंड कर गया। अब अगर मैं देखूं बच्चे, जो ये 3 कोडॉन्स के साथ बाइंड हुआ ना, तो अभी इस टेबल में मुझे देख के बताओ, क्या ये तीनों कोडॉन सेम अमीनो एसिड को कोड करते हैं क्या? क्या ये तीनों कोडॉन सेम अमीनो एसिड को कोड करते हैं? सी इन द टेबल। यस कुशाग्र। Are the 3 codons code for same amino acid? Right, same amino acid कौन सा है? ये दिख रहा है, आइसोल्यूसिन। राइट, ऑल आर कोडिंग फॉर सेम। अगर सेम को कोड कर रहे हैं तो क्या टीआरएनए को अलग होने में एतराज होगा या सेम होने में फायदा होगा? टीआरएनए को सेम होने में फायदा या अलग होने में एतराज होगा? सेम। अब समझ आया ना पॉइंट? राइट, तो अब क्लियर हुआ हुबल हाइपोथेसिस? क्लियर हुआ कुशाग्र? राइट, यस। तो अब हमने कहा वापस से जोया, राइट, वुबल पेयरिंग। वुबल पेयरिंग का मतलब कि जो आपका फर्स्ट बेस है, ध्यान से इसमें, फर्स्ट बेस ऑफ एंटीकोडॉन go for a distinctive pairing with anticodon of third position of codon when base pairs with first position of anticodon, then we name it as the Wubel pairing. Fine, right? तो अगर मैं इसको और अच्छे से क्लियर करूं यहाँ पर, तो ये है हमारे पास प्रोसेस Wubel pairing का। देखो, now if I say बेटा, अगर मेरे पास एंटीकोडॉन जो है C प्रेजेंट है, देखो X डैश Y डैश G, तो C बेस पे करता है G के साथ, ठीक है, और A बेस पे करता है U के साथ। तो इसमें मुझे कोई नहीं मिलता पॉइंट कि जहां पर मैं ये शो कर दूं कि बिकॉज ऑफ दिस इट कैन शो द डीजेनरेसी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहूँ दिस एंटीकोडॉन हैज अ U, राइट, सो U कैन नॉट ओनली बेस पेयर विद A, you can base pair with G also, right? You can base pair with G also. अगर मैंने G लिया तो G can base pair with C and U also, right? And if I have taken inosine, then I can see that, right? तब हम क्या देख सकते हैं हमारे पास, that this one, ये हमारे पास A के साथ भी, U के साथ भी और C के साथ। फाइन, हो गई अब कंडीशन क्लियर हुबल पेयरिंग की। तो हुबल पेयरिंग होने का मतलब, जहां पर हमने कहा कि हमारे पास एंटीकोडॉन, हुबल पेयरिंग का सिंपल मीनिंग, व्हेन वी हैव टेकन एंटीकोडॉन ऑफ mRNA base pairs with the anticodon of tRNA base pairs with the codon of mRNA। कंप्लीट? और कोई डाउट इसके अंदर हुबल पेयरिंग में? राइट, नो, वेरी गुड। सो हुबल पेयरिंग याद रहेगा, लिखो इसी के नीचे, स्टार मार्क करके पॉइंट लिखो। in order to compensate, I'll repeat once again, Dhananjay, एक बार लिखवा लो, compensate the less number of tRNA with respect to codons, अब an adaptive strategy called Wubel pairing, is observed. Wubel pairing is observed, right? Full stop. It is a pairing between, और बहुत ध्यान से पोजीशन गलत मत करना एग्जाम में, pairing between first position of anticodon and third position of codon, first position of anticodon and third position of codon। कंप्लीट? फर्स्ट पोजीशन आपकी किसकी? एंटीकोडॉन की, और थर्ड पोजीशन आपकी किसकी? कोडॉन की। एवरीवन क्लियर है यहाँ तक? राइट, सो दैट स्पेसिफिकली से अबाउट द प्रोसेस व्हिच वी विल डिफाइन एज द होल टर्म। राइट, एवरीवन कंप्लीटेड यहाँ तक? तो वुबल पोजीशन, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वुबल पोजीशन,
वूबल पोजीशन क्या होगी? व्हाट इज द वूबल पोजीशन ऑफ टीआरएनए एंड एमआरएनए? टेल मी गाइस, तब तक मैं एक बार डिस्कस कर लूं फिर से, राइट, एंड धनंजय को भी डाउट क्लियर हो जाए, राइट। तो वी सेज बेटा कोडॉन मेरे पास ये है, इसमें 3 पोजीशन है 1 2 3। एंटी कोडॉन मेरे पास ये है जहां पर मैंने पोजीशन रखी है 3 2 1, राइट। अब मेरे पास 1 2 3 की जो पोजीशन है, वो जो थर्ड पोजीशन है वो वूबल पेयरिंग कर रही है फर्स्ट के साथ, एंड बिल्कुल राइट, एंटी कोडॉन की फर्स्ट एंड कोडॉन की थर्ड, वेरी गुड सर, राइट। सो दैट्स बेसिकली वी डिफाइन एज अ वूबल पेयरिंग। इस वूबल पेयरिंग में मैंने कहा कि अगर आप एंटीकोडॉन की पोजीशन पे, अगर आप एंटीकोडॉन की पोजीशन पे यू, जी या आई इनमें से कुछ भी रख देते हो, तो इट कैन शो, दे कैन शो दी मल्टीपल बेस पेयरिंग। ये मल्टीपल बेस पेयरिंग को शो कर सकते हैं अगर आप इनमें से कुछ भी रखोगे यूजीआई में से। लेट सपोज आपने यू रखा तो वो बेस पेयर कर सकता है एजी के साथ, जी रखा तो सी आपका यहाँ पर बेस पेयर कर सकता है सीयू के साथ, आई रखा तो एयूसी के साथ, लेकिन ए और आपका कौन नहीं मानेगा, मानेगा ए बेसिकली नहीं मानेगा, और हमारे पास अगेन दैट विल से सी नहीं होगा जो आपका वूबल पेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, एंटीकोडॉन की फर्स्ट पोजीशन को 5 प्राइम पोजीशन भी कहते हैं, राइट। इफ यू विल से ना एंटीकोडॉन फर्स्ट पोजीशन, राइट, एंटीकोडॉन की फर्स्ट पोजीशन, धनंजय क्लियर हो गया? फर्स्ट पोजीशन को वी रेफर एज द 5 प्राइम पोजीशन ऑफ एंटीकोडॉन, एंड कोडॉन की थर्ड पोजीशन को we name as the 3 prime degenerate position, 3 prime degenerate position। याद रहेगा ये पॉइंट? तो क्वेश्चन में अगर ऐसे आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को, फाइन, राइट। सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट द जेनेटिक कोड एंड द होल बेसिस फॉर द टीआरएनए। तो यहाँ पर टीआरएनए भी समझ आ गया हमें, एमआरएनए भी क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड कैटेगरी पे, विच इज कॉल्ड आरआरएनए, राइट। आरआरएनए हम किसे डिफाइन करते हैं? We define rRNA as the ribosomal RNA which is present in the case of the ribosome, जो राइबोसोम में प्रेजेंट होगा, राइट। अब देखो ध्यान से, rRNA जब हमने डिफाइन किया तो बेटा जब राइबोसोम में, तो राइबोसोम मेरे पास 2 टाइप का है, एक है 70S क्योंकि हमें प्रोकैरियोट का भी पढ़ना है, और एक है मेरे पास यहाँ पर 80S। तो आई विल से वन इज द 70S, another is the 80S। नाउ 70S में ये यूनिट 30S, ये यूनिट 50S, यहाँ पर ये 40S, ये 60S। फटाफट मुझे समझा दो फटाफट क्या प्रेजेंट होता है इनके अंदर। 30S में क्या क्या मिलता है मुझे? 30S हैज 16S rRNA प्लस RNPs, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन मिलते हैं, राइट। वहीं पर 50S में रिमेंबर 11th क्लास फर्स्ट चैप्टर सेल साइकिल सेल डिवीजन, राइट। यहाँ मुझे क्या मिलता है यहाँ पर कंप्लीट 5S rRNA, यस 23S rRNA प्लस RNPs, राइट। ये फाइंड हो जाएंगे, राइट, बिल्कुल। अब 40S पे आ जाओ, तो 40S पे क्या मिलेगा मुझे? 18S rRNA प्लस RNPs, राइट, एंड ओवर हियर वेरी गुड 28S rRNA प्लस 5S rRNA प्लस 5.8S rRNA, ये मुझे तीनों मिल गए, और हाँ प्लस RNPs तो है ही, राइट। हमें तो स्पेसिफिकली सिर्फ एमआरएनए के रिस्पेक्ट में पढ़ना है कि कौन कौन यूज होने वाला है। तो अब हमने क्या कहा बच्चे इसके अंदर, जो मैंने पूरा प्रोसेस में पढ़ाया, 16S rRNA in prokaryotes and 18S rRNA in eukaryotes is responsible for translation initiation, right, ट्रांसलेशनल इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल 16S rRNA एंड हमारे पास 18S rRNA रिस्पॉन्सिबल है। वहीं पर अगर हम कहें 23S rRNA एंड 28S rRNA, ये दोनों वर्क एज राइबोजाइम्स। नाउ हु विल टेल मी राइबोजाइम? work as peptidyl transferase enzyme। राइबोजाइम क्लियर है सबको? राइबोजाइम क्या होता है? एंजाइम, राइट, who is not made up of a protein, rather being made up of a RNA। तो उसे हम क्या कह देंगे? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम 23S एंड 28S। यहाँ तक का पॉइंट, राइट, ओके गाइस।
अब मैं यहाँ पर आपको ना कुछ यूनिट बताऊंगी राइबोसोम की, और वो यूनिट ध्यान रखिए। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। ये हमारे पास ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर, यहां पर हमने इसे बाइंड करा दिया टीआरएनए से बाइंड करा दिया, राइट, इस एमआरएनए के स्ट्रक्चर को, राइट। नाउ इन दिस कंप्लीट, हमने कहा ये हमारे पास एमआरएनए स्ट्रक्चर, एमआरएनए स्ट्रक्चर में वी से 1 एज अ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और यहाँ मैंने राइबोसोम की यूनिट्स अटैच करा दी। ये मेरे पास स्मॉलर सब यूनिट, हमेशा एमआरएनए के नीचे स्मॉलर सब यूनिट लगता है, और एमआरएनए के ऊपर हमारे पास लार्जर सब यूनिट अटैच होती है। तो एमआरएनए के ऊपर लार्जर सब यूनिट, एमआरएनए के नीचे हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट अटैच हो गई। फाइन। अब मैंने कहा बच्चे इसके पास कैसे हम यहाँ पर टैग करते हैं इसके अंदर यूनिट को। तो इसके अंदर ना साइट होती है, पी साइट, ए साइट एंड ई साइट। शायद मैंने 11th में भी आपको कराया है, राइट। पी साइट इज बीइंग वन which is called as peptidyl site. A site is the one which is called as amino site, and E site is the one which is called as exit site, right? ये 3 साइट हो गई, right? P साइट का मतलब इनमें साइट में है कुछ नहीं बेटा, कोडॉन है। दे आर द डॉकिंग साइट जिन पे कोडॉन्स लगा रखे हैं। मैं कोडॉन्स यहाँ लिख के देती हूँ, राइट। ट्रिपल एक्स यहाँ पर लगा देते हैं, ट्रिपल वाई यहाँ पर लगा देते हैं, ट्रिपल जेड यहाँ पर लगा देते हैं। दे हैव द कोडॉन्स, राइट। ये कोडॉन्स है हमारे पास, राइट। तो अब मैंने यहाँ पर कहा कि मेरे पास जो पी साइट है, पी साइट इज कॉल्ड एज अ बाइंडिंग साइट ऑफ इनिशिएटर टीआरएनए। Okay. Yes, Ananja, sound is breaking. Everyone, audio is fine? Dhananjay, rejoin once again, beta. एक बार rejoin करो. Right, so everyone, audio, video fine? दिख रहा है सबको proper? Fine, okay. Right, now moving here, binding of initiator tRNA and peptidyl tRNA. तो इनिशिएटर टीआरएनए और पेप्टिडाइल टीआरएनए को बाइंड कराने के लिए जो साइट है, जिस कोडॉन पे वो साइट करेंगे, वो कोडॉन पी साइट पे होना चाहिए। ए साइट इज द वन जहां हम बाइंडिंग कराएंगे अमीनो एकाइलेटेड टीआरएनए। We said we have the binding of amino acylated tRNA over the A site, and E site is the one which is exit site, which is working as a binding site of deacylated tRNA. अभी बस डेफिनेशन लिख लेना, आपको भी ये क्लियर नहीं होगा मैंने क्या लिखा है, राइट। लेकिन हाँ, ये चीजें अभी लिख लो, राइट। ये ट्रांसलेशन के साथ साथ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट, कि व्हाट वी हैव बीन रिटन। चलिए, समझ आया यहाँ तक का पॉइंट। तो वी से पी साइट, ए साइट एंड ई साइट, राइट। जहाँ पी साइट मेरे पास पेप्टिडाइल साइट, ए साइट मेरे पास अमीनो साइट एंड ई साइट मेरे पास एक्सिट साइट, जहां पर आपने एक डीएकाइलेटेड टीआरएनए को बाइंड कर दिया, राइट, वेयर यू हैव बाइंडेड द कंप्लीट डीएकाइलेटेड टीआरएनए, राइट। व्हेन वी ऐड अ बेस एंड देयर इज नो चेंज इन द अमीनो एसिड। यस पंच, ओके, पहले लिखा होगा ये वाला ना, हां 334, ओके, राइट। यहां तक क्लियर बच्चे सबको अच्छे से? अब टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए सब कुछ क्लियर हो चुका है। आर वी रेडी टू स्टार्ट विद द ट्रांसलेशन नाउ, राइट? अभी भी किसी को कोई डाउट, राइट? एनी स्पेसिफिक डाउट टू एनीवन टिल दिस पॉइंट? अभी भी किसी को कोई डाउट, राइट? जिस भी पॉइंट पे, राइट, से इट, फिर मैं स्टार्ट वो डाउट क्लियर करूं, एंड एल्स आई विल स्टार्ट विद द ट्रांसलेशन, राइट? स्क्रॉल अप, ओके, फाइन। अनुष्का, ओके गाइस, सो कंप्लीटेड यहाँ तक,
राइट, तो दिस इज जस्ट अ प्रिपरेशन, ठीक है। अभी इससे मुझे आगे डाउट नहीं मिलने चाहिए जब मैं चीजें रिपीट करूंगी। ओके गुड। तो देखो अब हमने मैसेंजर बना लिया, हमने ट्रांसक्रिप्ट बना लिया, ट्रांसक्रिप्ट के बाद हमने अमीनो एसिड को लाने वाली मशीन भी बना ली, राइट। फिर उसके बाद हमने ये भी कर लिया कि चलो ये सब कुछ भी हो गया, नाउ वी से नाउ इट्स अ टास्क। तो आपको क्या करना है, राइट, यू हैव टू मेक द राइबोसोम आल्सो रेडी टू गो फॉर द ट्रांसलेशन, कि आपको ट्रांसलेशन शुरू कर देना चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट द होल प्रोसेस which is being defined as translation. इसको मैं define करूँगी translations, right? So let me start with the process, right? Excuse me, ma'am. प्रोसेस ना प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सेम है, तो मैं आपको पहले प्रोकैरियोट पढ़ाऊंगी, उसी के साथ मैं डिफरेंसेस यूकैरियोट के बताती चली जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि यूकैरियोट में आपको डिटेल नहीं पढ़नी है इसकी। ट्रांसलेशन, नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन गाइस, क्विकली टेल मी द डेफिनेशन फॉर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को मैं कैसे समझूं, कैसे समझाऊं, राइट, व्हाट शुड बी द डेफिनेशन, ट्रांसलेशन क्या है हमारे पास, राइट, अगर हम स्टेट करें तो। Yes, RNA to protein, very good, right? So translation is process of decoding mRNA transcript information, RNA नहीं mRNA specific लिखना है, right? Transcript information as polypeptide stretch, पॉलीपेप्टाइड स्ट्रेच की तरह एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट इंफॉर्मेशन को डिकोड करना, दैट इज व्हाट वी विल से। व्हाई ओनली जी एंड सी इन द वूबल पेयरिंग, बिकॉज बेटा इनमें टॉटोमेरिक शिफ्ट जल्दी होता है, राइट, जी और सी नहीं बच्चे, जी और यू, राइट, ए और सी का टॉटोमेरिक शिफ्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसी वजह से ये एक्चुअली देखो तो ये टॉटोमेरिज्म के जैसा ही है, राइट, टॉटोमेरिक शिफ्ट जैसा ही है। ये बेस पेयरिंग स्पेसिफिकली टॉटोमेरिक शिफ्ट जैसे ही है, इसी वजह से हम कहते हैं, ठीक है, फाइन। अब हमने कहा बेटा अब ट्रांसलेशन जब मुझे स्टार्ट करना है ना, तो ट्रांसलेशन में ये डिफाइन करती हूँ कि इसके अंदर मुझे ट्रांसलेशन के प्रोसेस में आई हैव टू स्टेट वन थिंग, कि मुझे यहाँ पर सबसे पहले इनिशिएशन तो कराना ही कराना है, लेकिन इनिशिएशन से पहले मुझे प्री इनिशिएशन कराना है। इनिशिएशन से पहले भी एक स्टेप मुझे करना है, and that step is pre-initiation step, A part, right? तो अब आते हैं प्री इनिशिएशन स्टेप पे, क्या डिफाइन करते हैं और कैसे कंप्लीट करते हैं। नाउ सी, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट टू अस बच्चा इज दैट कि हमें एमआरएनए हमारा रेडी हो चुका है, राइबोसोम ऑलरेडी रेडी बैठा है सेल के अंदर, राइबोसोम ऑलरेडी आरएनए को कैरी करके रेडी बैठा रहता है हर टाइम, राइट। आपको बस अब टीआरएनए को रेडी करना है, क्योंकि टीआरएनए को आपके जितने टीआरएनए सेल के उन सब पे अमीनो एसिड लग जाए कि जब जिसकी जरूरत पड़े वो फटाफट आके अटैक कर दे। वी हैव टू मूव इन दैट मैनर, हमें उस तरीके से काम करना है कि हमें टीआरएनए को रेडी करना है, राइट। तो हमने कहा टीआरएनए को कैसे करें रेडी, तो प्री इनिशिएशन स्टेप का एक्चुअल मीनिंग क्या है, दैट इज कॉल्ड अमीनो एकाइलेशन ऑफ टीआरएनए, और वी कैन से एक्टिवेशन, और वी कैन से चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो आपको टीआरएनए का अमीनो एकाइलेशन करना है, आपको एक्टिवेशन करना है, या आपको चार्जिंग करनी है, क्योंकि टीआरएनए को चार्ज एडाप्टर पता है क्यों कहते हैं, इसीलिए क्योंकि टीआरएनए चार्ज होने का मतलब कि उस पर अमीनो एसिड अटैच है। अभी समझाऊंगी अमीनो एकाइलेशन का मीनिंग, राइट। टीआरएनए पे अमीनो एसिड अटैच होना मींस टीआरएनए चार्ज्ड है, एक्टिवेटेड है और अमीनो एकाइलेटेड है। अब अमीनो एकाइलेटेड कैसे है वो भी मैं समझाऊंगी अभी इसके अंदर। नाउ लेट्स से अबाउट दिस। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, फर्स्ट पार्ट हमने कहा पहले आप करो कि अमीनो एसिड को एक्टिवेट करो, तो यू विल गो फॉर अमीनो एसिड एक्टिवेशन, क्योंकि अमीनो एसिड भी तो सेल में ऐसे ही बैठा हुआ है ना साइटोप्लाज्म में, उसको भी तो एक्टिवेट करना पड़ेगा,
तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर अमीनो एसिड में एटीपी को ऐड किया in the presence of the enzyme amino-acyl tRNA synthetase enzyme, और इसको एंजाइम को डाल के हमने यहां पर बना दिया अमीनो AMP कॉम्प्लेक्स, दैट इज अमीनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स आपने फॉर्म कर दिया, विच इज नाउ कॉल्ड एज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में आपने पीपीआई को बाहर निकाल दिया, राइट आपने बना दिया अमीनो AMP कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एंड पीपीआई को आपने बाहर निकाल दिया। समझ आया पॉइंट बच्चे? राइट एवरीवन अंडरस्टूड? तो ये हमने यहां तक काम किया, राइट। अब मैंने कहा इसके अंदर कि अब आगे क्या करें, तो वी से अब जो आपका ये बना है अमीनो एकाइल बना है उससे आप टीआरएनए को चार्ज कर दो। तो मैंने कहा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए चार्जिंग का मीनिंग हमने क्या किया है यहाँ पर, वी हैव अमीनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स, इससे मैंने बाइंड कराया टीआरएनए, सेम इसी एंजाइम को यूज किया, लेट्स सपोज E1 इसे मैंने कहा, और यहां मैंने बना दिया अमीनो एकाइलेटेड टीआरएनए प्लस रिलीज कर दिया AMP को, राइट। अभी मैंने दोनों जो लिखी है ना बातें, ये क्या है, अब मैं वो आपको समझाऊंगी इसके मैकेनिज्म से, और मैकेनिज्म ना साथ साथ में ड्रॉ करते जाना। नाउ सी ओवर हियर, ये हमने लिया, हमारे पास आम है CCA आम, CCA की तरफ ना बेटा there is a presence of DHU और T5C loop और opposite DHU loop, ठीक है, राइट लिटिल डाउनवर्ड। अब ठीक है, नाउ इन दिस बच्चे हमने कहा यहाँ पर ये मेरे पास 5 प्राइम एंड, ये मेरे पास 3 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड की तरफ अगर आपको याद हो तो DHU लूप था, और DHU लूप के ऊपर आप बाइंडिंग किसको कराते हो, अमीनो एकाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम को। तो यहाँ पर आपने अमीनो एसिड AMP E1 कॉम्प्लेक्स, E1 टीआरएनए के साथ ऐसे जुड़ते हैं, राइट, E1 अमीनो एसिड AMP E1 कॉम्प्लेक्स। इसने अब क्या करना है, इसने इस A के बीच में और अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनाना है, हमें यहाँ बॉन्ड बनाना है। अब हम यहाँ बॉन्ड कैसे बनाते हैं वो चीज अब आपको क्लियर करनी है, ठीक है। नाउ सी एवरीवन, अगर मेरे पास ये CCA आर्म है जिसको मैंने नाम दिया है अमीनो एक्सेप्टर आर्म, तो टेल मी गाइस, और ये 3 प्राइम एंड है, तो A का क्या फ्री है, A का क्या फ्री है मेरे पास, क्या 3 प्राइम OH फ्री है A का, करेक्ट, राइट। अब अगर मैं एक अमीनो एसिड को लेके चलूं, वो अमीनो एसिड है मेरे पास COOH NH2 R एंड H, यही होता है अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड। नाउ इज द 3 प्राइम OH एबल टू रिएक्ट, क्या 3 प्राइम OH रिएक्ट कर सकते हैं? अगर 3 प्राइम OH रिएक्ट कर सकते हैं तो क्या 3 प्राइम OH ये और COH ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे एंड गो फॉर दी अमीनो एस्टेरिफिकेशन, अमीनो एस्टेरिफिकेशन कर लेंगे, कंप्लीटेड, एस्टर बॉन्ड बन गया ना, राइट, OH और COH के बीच में तो एस्टर बॉन्ड बना, तो हमने अमीनो एस्टेरिफिकेशन, क्योंकि अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड के बीच में बना। तो इसके बेसिस पे अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो अब मेरे पास स्ट्रक्चर क्या आएगा कि ये जो मेरे पास CCA आर्म था, इस आर्म से अटैच कौन हो गया, अमीनो एसिड। नाउ कैन आई नेम दिस tRNA एज अमीनो एकाइल tRNA, कि ये जो tRNA है मेरे पास, ये आपका किससे कनेक्टेड है, टू दिस, राइट। और इसी अमीनो एकाइल tRNA के साथ आपने AMP बाहर निकाल दिया, और आपने उसी के साथ साथ वाटर बाहर निकाल दिया, आपने E1 बाहर निकाल दिया, राइट। मैं फिर से रिपीट करती हूँ एक बार, देखो यहाँ पर ये हमारे पास CCA आर्म है और एक हमारे पास अमीनो एसिड का ग्रुप है। हमने जो CCA आर्म लिया,
सीसी आर्म के 3 प्राइम OH पे 3 प्राइम पे OH फ्री है, राइट। आपने कहा कि जो 3 प्राइम पे OH है वो 3 प्राइम के OH को आप रिएक्ट करा दो अमीनो एसिड के COH के साथ, राइट। अगर अमीनो एसिड के COH के साथ उसे अटैच कराओगे, राइट, तो अमीनो एसिड पे जो COH ग्रुप है और जो OH आपका 3 प्राइम पे है, दे विल जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म द एस्टर बॉन्ड। तो एक तरीके से एस्टर बॉन्ड अमीनो एसिड के साथ बना, तो हमने कह दिया अमीनो एस्टरिफिकेशन हैज बीन डन, एकआइलेशन हैज बीन डन, that's why we name it as the amino acylation, or the product form is called as the amino acylated tRNA. अब सबको समझ आया amino acylated tRNA का मीनिंग, राइट। सो दिस इज व्हाट वी से। एवरीवन अंडरस्टूड बच्चे? यहां तक सब कुछ क्लियर हुआ? यस गाइस, राइट। अमीनो एकाइलेशन का पूरा मैकेनिज्म समझ आ गया अच्छे से, हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, हमने कैसे किया इसको, कैसे हमने इसे कंप्लीट किया है, क्या क्या इसके अंदर मेन है, सब कुछ, राइट। ओके, स्क्रॉल अप, वेट वेट वेट, इज इट फाइन? राइट सान्या? राइट, तो दिस इज कॉल्ड अमीनो एकाइलेशन। तो क्या आप इस रिएक्शन के थ्रू ये कह सकते हो कि सभी टीआरएनए की चार्जिंग हो चुकी है? तो कैन आई राइट द फाइनल इक्वेशन? अब अगर मैं फाइनल इक्वेशन को लिखना चाहूं तो आई कैन राइट द फाइनल इक्वेशन एज, राइट, शो द पेज ऑफ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। दिस इज व्हाट द चार्जिंग ऑफ टीआरएनए इज। ठीक है बच्चा, राइट। हाँ जी, अब अगर मैं फाइनल इक्वेशन लिखना चाहूं तो कितने एटीपी मेरे पास यूज हो गए? हाउ मेनी एटीपी आर यूज्ड इन द चार्जिंग? Yes guys, how many ATP are used in the charging? चलो क्वेश्चन को थोड़ा और सिंपल करती हूँ। How many ATP will be used in the charging when there has been 20 amino acid to be 20 amino acid, right, to be used? When 20 amino acid has to be used, how many ATP will be used in the charging step? Charging step में कितने ATP आप यूज कर लोगे इस बेसिस पे? Have we used 20 ATPs? राइट ना, 20 ATP यूज करेंगे क्योंकि हमें चार्जिंग में वही करना है ना। बिल्कुल ठीक बच्चा, राइट। तो वी से द फाइनल इक्वेशन, इफ वी विल राइट, वी विल से अमीनो एसिड प्लस tRNA प्लस ATP in the presence of enzyme amino acyl tRNA synthetase form amino acyl tRNA plus AMP plus PPI. This is called charging of tRNA. Everyone understood? And we have 1 ATP required, right, for one particular charging process, right? So हमने कहा यहाँ पर number of ATP required इस स्टेप के लिए, number of ATP required equals to number of amino acid incorporated in पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन में जितने हमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेट करने हैं उसके इक्वल हो गया हमारे पास नंबर ऑफ एटीपी, राइट। दिस इज व्हाट वी स्टेट एज द फाइनल इक्वेशन, राइट। तो अब देखो यहाँ पर प्री इनिशिएशन स्टेप, हमने कहा प्री इनिशिएशन स्टेप में ये फॉर्म कर दिया। नाउ सी ओवर हियर, ये हमारे पास है, राइट। देखो अब इसके अंदर अमीनो एसिड हमने, ये कौन सा ग्रुप है? एडेनाइन हो गया सीसी आर्म का, राइट। और सीसी आर्म में ये वाला ग्रुप आपने बना दिया। दिस इज कॉल्ड एज द अमीनो एकाइल ग्रुप। ये डायग्राम सबको समझ आया? क्या हमने डायग्राम में बना रखा है, राइट। ये कौन सा बॉन्ड है? ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ये वाला हमारे पास,
राइट. सो दिस इज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन C, यहाँ पर C है और यहाँ पर A आ गया, और फिर एक यहाँ पर C और प्रेजेंट है. तो हमने CCA और A के साथ अमीनो एकाइल ग्रुप बना के यहाँ पर फॉर्म कर दिया. राइट. तो वी सिंपली से दिस स्टेप एज द अमीनो acylation, or we can say charging of tRNA. Right. And charged tRNA को हम नाम देते हैं amino acyl tRNA. That's what we stated here. Fine. अब हमने जब प्री इनिशिएशन कर लिया, then we have to go for the process of initiation. अब हमें इनिशिएशन करना है. तो सबसे पहले यहाँ तक का पॉइंट किया, फिर मैं इनिशिएशन पे भी चलूँ. सिर्फ एक पॉइंट उसमें पढ़ाऊंगी. अच्छा, ओके एवरीवन. नाउ इनिशिएशन में मुझे क्या करना है? इनिशिएशन इज रिलेटेड विद द एक्टिविटी ऑफ स्टार्ट कोडॉन and formation of initiation translational complex. आज इसमें सिर्फ पहला स्टेप बताऊंगी इनिशिएशन में. राइट. एंड द फर्स्ट स्टेप बाइंडिंग ऑफ 30s सब यूनिट, क्योंकि मैं प्रोकैरियोट की बात कर रही हूँ बेटा. 30s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. राइबोसोम कभी भी एक साथ आके बाइंड नहीं करता, पहले छोटा बाइंड करेगा, बड़ा बाइंड करेगा टू mRNA. अब आपने tRNA को तो एक्टिव करा दिया, तो हमने कहा भैया राइबोसोम को तो लेके आओ, काम तो वही कराएगा. राइट. तो राइबोसोम को कैसे लाएंगे हम? राइट. तो हम राइबोसोम को फिर अटैच भी कहाँ कराएं? तो अब ध्यान से देखना, ये मेरे पास mRNA का सीक्वेंस, ये पहला UTR. और अगर याद हो तो मैंने आपको कहा था बेटा 5' UTR भले ट्रांसलेट नहीं होगा, लेकिन उसके बगैर ट्रांसलेशन शुरू नहीं होगा. राइट. तो उसमें क्या सीक्वेंस है जो मैंने पहले भी लगाया था, एंड द सीक्वेंस इज Shine-Dalgarno sequence. And you will be amazed to know, guys, this Shine-Dalgarno sequence is complementary to 16s rRNA 3' sequence. 16s rRNA 3' sequence की complementary है. तो अगर Shine-Dalgarno sequence tell me is complementary to this, and अगर मैं यहाँ बाइंडिंग कराऊं 30s सब यूनिट की, तो क्या 30s सब यूनिट इस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से बाइंड हो जाएगा? कैन आई से 30s सब यूनिट विल बाइंड टू दिस? राइट. बाइंड हो सकता है. कैसे? जैसे मेरे पास ये हो गया, मैंने कहा ये 5' UTR, ये 5' सीक्वेंस, ये मेरे पास आ गया SD सीक्वेंस. यहां पर मैंने बाइंडिंग करा दी 30s सब यूनिट की. 30s सब यूनिट की बाइंडिंग कैसे हुई? क्योंकि इसके अंदर ये 3' एंड है 16s rRNA का, एंड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होने की वजह से दिस इज व्हाट ये अटैचमेंट हैपन. राइट. हमारे पास अटैचमेंट हो गई. अब समझ आया? राइट. सो दिस डन बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. राइट. कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से कंप्लीट हुआ यहाँ तक का पॉइंट. तो बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, वंस मोर फाइन, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से हमने फॉलो किया. देखो हमने कहा जो ये आपका SD सीक्वेंस प्रेजेंट है 5' UTR के रीजन में, इट इज अ कंसेंसस सीक्वेंस एंड अ पॉलीप्यूरिनिक सीक्वेंस. पॉलीप्यूरिनिक का मतलब प्यूरिन्स बहुत सारे हैं. राइट. एडेनाइन ग्वानिन, एडेनाइन ग्वानिन, एडेनाइन ग्वानिन, बहुत सारे हैं इसके अंदर. उनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस 16s rRNA कैरी कर रहा है अपने 3' एंड पे. राइट. तो क्योंकि 5' अगर RNA का शुरू कर रहे हो mRNA का, तो 3' शुरू करोगे rRNA का. तो 3' पे 16s के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट है. बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर 30s सब यूनिट जाके बाइंड कर जाता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से, क्योंकि 16s RNA से जुड़ जाएगा आराम से.
तो 30s जैसे ही बाइंड करता है, अब आगे का प्रोसेस हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। कंप्लीट यहाँ तक एवरीवन? 30s जब आता है तो अपने साथ दो साइड को लेके आता है, एक है AUG यहाँ पर कोडॉन, एक है GUG, ये P साइड, ये A साइड। E साइड तब आएगी जब कौन आएगा हमारे पास, लार्जर सब यूनिट, राइट? वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर? एवरीवन अंडरस्टूड? यस गाइस, कंप्लीटेड? कोई भी डाउट यहाँ तक? राइट, टिल दिस पॉइंट? Excuse me, ma'am. Clear everyone? Right. So this is where we begin with the translation. So the coming class is going to be very interesting क्योंकि translation खत्म करेंगे उसमें पूरा, right? So this is where we will talk about this, right? Whole, right? Everyone understood? यहाँ तक concept बचा, सबको अच्छे से clear हो चुका है, right? Okay, right. So let's wind up the topic at this point, right? And we'll meet you in the coming class. So any doubts to anyone? Right? Complete है सबको अच्छे से? Fine. Right. Okay guys. So we'll meet you in the coming class guys. Complete करते हैं यहाँ तक.